सपोज करो परसेंटेज लेबलिंग लिखा हुआ 100 प्लस x%, ठीक है। तो जैसे 109 है, 100 प्लस 9 ये हो जाएगा, 100 प्लस 9 ये हो जाएगा, 100 प्लस 18 ये हो जाएगा, 100 प्लस 10। तो 100 प्लस x% का मतलब होता है दैट 100 ग्राम ऑफ ओलियम मिक्सचर reacts with x gram of water to produce 100 plus x ग्राम ऑफ H2SO4। बात समझ में आई? यस सर। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ? तुम्हें कितना ग्राम ओलियम सैंपल लेना है? 100 प्लस एक्स। और नहीं 100, और उसमें कितना वाटर डालना अच्छा है? वॉल्यूम का। अच्छा एक्स ग्राम सर। समझ में आई बात? 100 हाँ सर। प्लस एक्स कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, तो जितना भी ओलियम रहेगा ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2SO4। अच्छा हाँ। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, तो हमारे पास कितना ग्राम हमने ओलियम लेना है ओवरऑल? 100 ग्राम। तो परसेंटेज लेबलिंग जो है ना उसका रेफरेंस कितना है? 100 ग्राम। राइट, गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ, मतलब अगर मेरे पास, एक मिनट, राइट, कैन यू सी दैट बेटा? यस सर आई कैन। हाँ, नाउ लिसन, वेयर वी परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम, हाँ सर। ठीक है। Now understand one thing here. If you are suppose someone has given us 109 percentage of labeled oleum, so what does it mean? How much gram of oleum I have to take? 100। 100, right? यस In सर। 100 gram of oleum I will have some part of SO3 and some part of H2SO4। H2SO4. Agreed? हाँ सर। Now understand that if I'm adding water in oleum, H2SO4 will not react with water. Only SO3 is the component which is reacting with water to produce H2SO4. हाँ सर। So 100 gram, how many gram of water is required? 9 grams। 9 gram of water is required. So tell me one thing. I have SO3 and I know that for SO3 I'll react it with water so that it'll convert into H2SO4. यस सर। Now how many gram of water is required? 9 grams। 9 gram. 9. I know that 1 mole is reacting with 1 mole to produce 1 mole, right? हाँ सर। How many moles of water I am reacting it with? हाफ अ मोल। Half a mole. So if I have half a mole, so half a mole will react with half a mole यस सर। to produce half a mole. Half a यस सर। mole of SO3 is how many grams? 40। आई 40. थिंक 80। 40 grams. So 40 grams plus 9 gram will be equal to 49 grams. यस सर। So tell me, in 100 gram of oleum, I'll have 40 gram of SO3 and how many gram of H2SO4? 60। Understand? यस सर। Great. Great. Shall we move ahead? यस सर। Very good. Now just tell me, maximum percentage labeling. How many, what will be the maximum percentage labeling? Which is reacting with water. In oleum, which reacts with water. सर मतलब। In oleum sample, which thing is reacting with water? अच्छा SO3 सर। So tell me, if I have maximum SO3 possible, that is 100 gram, that will be the maximum percentage labeling of volume, हाँ सर। or minimum percentage labeling will be 0 gram 0। of SO3, right? हाँ Now सर। 100 gram of SO3 will be how many moles of SO3? That is 100 by 80. That comes out यस to be सर। 1.25. Agreed? यस सर। So 1.25 gram will react with how many moles of water? 1.25। 1.25. 1.25 moles will be how many grams?
into Sir, 18, 18 that into will come 1.2. out to be 18 plus 4.5, that is 22.5. 22.5. So shall I say Yes, that sir. the percentage labeling, as this is a mixture, will be between 100 to 122.5%, Yes, sir. 100 plus 0 gram, and the range is between this. So whenever they've given you that I have 125% labeled oleum, will it be valid? No, sir. No, it cannot be valid because percentage labeling lies in this bracket. Correct? Yes, sir. Very good. Now just tell me, a question is given to you, hmm, that I have, let's say, 50 gram of 118% labeled oleum reacts with X molar 100 ml NaOH. What will be the value of X? Yeah, have you written this question? नहीं सर लिख रहा हूँ. Okay, हाँ सर हो गया लिख. चलो ठीक है. Tell me. It says that 50 gram is there of oleum, right? हाँ सर. Okay, what is the percentage labeling? 118%. Very good. Now just tell me how much amount of H2SO4 will be produced? Sir, 118 grams of H2SO4. No, In 50 grams 59 होगा. it will be 59. So I do have 59 grams of H2SO4, correct? हाँ सर. Ultimately, when I'm making it a solution, it will become 59 gram of H2SO4, which will be reacting with NaOH, right? Yes sir. So can I write equation that H2SO4 plus 2 NaOH will give me Na2SO4 for complete titration? Any doubt? No sir. Very good. Now अंडरस्टैंड हेयर, अगर इतना समझ में आ गया, ये था तुम्हारा 59 ग्राम्स, करेक्ट? नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे इसके? 59 by 98. 59 बाय 98. 98. तो दैट number of moles of NaOH will be equal to 118 by 98. हाँ सर. हाँ तो सर. ये जो मोल्स हैं, ये कौन दे रहा? ये NaOH. solution है NaOH का अपना. मोलारिटी कितना दे रखा? X x मोलर कितना ml? 100 ml. तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने हुए इसके? 100x. और नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए? 118 by 98. 0.1x हुए ना? अच्छा नंबर ऑफ मोल. अच्छा उसके. हाँ सर. मिलीमोल्स 100x हो गए and number of moles 1.1x हो गए. तो shall I say that number of moles of NaOH will become equal to 0.1x? Yes sir. तो कितना आएगा इसका? x की वैल्यू कितनी आएगी? Sir 1180 by 98. Yeah, understood. Yes sir. This is how percentage labeling of oleum works. Any doubt in that? No sir. Understood. हाँ सर समझा. हाँ, उसके बाद
What is after next part of this? What is the next part of this? There is percentage and volume labeling, volume strength of H2O2. Correct. There's another case where people stuck. You know now, Yes, sir. right? In market, H2O2 is available in volume. For example, the strength of H2O2 is given as 5 volume, 10 volume, 2.5 volume, right? हाँ सर. What is that thing? What is volume? What do you mean by that volume strength? सर जो पढ़ा था वो था कि 1 लीटर H2O2 से कितना लीटर्स O2 मिलता है. Definition क्या है? If volume strength is V, what does it mean? One, From 1 liter of H2O2 नहीं V नहीं नहीं liters of नहीं O2 नहीं, ये. सुनो सुनो सुनो, वो ठीक है, बट 1 लीटर ऑफ H2O2 क्या? H2O2 सॉल्यूशन. सॉल्यूशन. अच्छा हाँ सर. ठीक है, यू हैव डिजॉल्व H2O2 इन वाटर. So 1 liter of H2O2 solution gives V liters of oxygen gas at STP. That is the definition. Getting it? हाँ सर. Initially, no. Initially, STP was STP was like 1 mole of gas at STP occupy how much amount of volume? 22.4 liters. That was initial data. Nowadays, they have changed the reference. Now the standard pressure is 1 bar. Initially, the standard pressure was 1 atm. Now standard temperature is 273 Kelvin and standard pressure is 1 bar. At this condition, no 1 mole of gas gives 22.7 liters of volume of gas. Understood? सर पर एग्जाम में 22.4 ही यूज करना है ना. बेटा प्रॉब्लम क्या है कि वो जो एग्जाम तुम लिखते हो ना उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत पुराने क्वेश्चंस बने हुए हैं. ठीक है, ओके. तो उस चक्कर में ना इन लोगों ने क्या किया है कि वो क्वेश्चंस चेंज नहीं किए और उसके रिस्पेक्ट में आंसर चेंज नहीं किया. तो फिर एडवांस्ड आएगा उसमें 22.7 यूज करेंगे. एग्जैक्टली. ओके सर ठीक ठीक है. है. हाँ. या समझ में आई बात? गेटिंग इट? यस सर. तो अगर एक बात बताओ, अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ V है तो H2O2 सॉल्यूशन डिकम्पोज करके H2O प्लस हाफ O2 देता है. करेक्ट? यस सर. कितना लीटर्स निकल रहा है ऑक्सीजन गैस का? 22.7/2 वन नहीं वन नहीं पॉइंट नहीं थ्री नहीं फाइव नहीं नहीं नहीं, नहीं. अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ V है तो V लीटर्स निकलेगा. अच्छा. हाँ सर वी लीटर्स निकलेंगे. चलो V लीटर निकलेगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे? सर V बाई 22.7. वेरी गुड. V बाय 22.7. 22.7 दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस. एक बात बताओ, एक मोल से आधा मोल निकल रहा है तो कितने मोल्स H2O2 के एक्चुअली पड़े हुए हैं सॉल्यूशन के अंदर? V बाई 11.35. 2V/22.7. राइट. यस सर. वेरी गुड. यार ये जो है ना H2O2 के जो मोल्स हैं कितने लीटर सॉल्यूशन में है? 1 लीटर सोल्यूशन में. तो यही इसका मोलैरिटी हो गया. यस सर. ओके. अंडरस्टूड. हाँ सर. वेरी गुड. एक मिनट. ओके. नाउ टेल मी वन थिंग. ओके.
We were talking about H2O2, ठीक है. Now let's say they have given you, uh, I have, let's say, 22.7 volume strength of H2O2. Any doubt? No, sir. Now they want to ask me that what is weight by volume percent of H2O2. Getting it? हाँ सर. What is the molarity of H2O2 solution? What is the normality of H2O2 solution? Now what you will do? पहले मोलारिटी में कन्वर्ट करेंगे. नहीं नहीं यार, भाड़ में क्या, मेरे को ना पता है क्या, मुझे फॉर्मूलाज, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने ही नहीं है. What I want, that I'll just go by logic here. Tell me, what is the definition says? सर एक वो H2O2 के सोल्यूशन H2O2 के सोल्यूशन का 1 लीटर लिया तो उसमें से 22.7 लीटर्स ऑफ O2 निकलेंगे. वेरी गुड. जो H2O2 डिजॉल्व है वाटर के अंदर, ठीक है, इसके अंदर कुछ मोल्स ऑफ H2O2 है. टोटल वॉल्यूम 1 लीटर है. And let's say I have n moles of H2O2. Getting it? I want to calculate number of moles of H2O2, then I'll get molarity, correct? And Yes, sir. correspondingly normality. Now understand that H2O2 solution जो है, that will decompose to give H2O plus हाफ O2. कितना ऑक्सीजन गैस निकल रहा है? 22.7 लीटर्स. कितना मोल्स हो गया? 1 मोल. 1 मोल हो गया तो कितना मोल H2O2 हो गया? 2 मोल. 2 मोल्स. 2 मोल्स कितने वॉल्यूम में? 1 लीटर में. तो ये इसका क्या हो गया? मोलारिटी. वेरी गुड. एन फैक्टर क्या होता है H2O2 का? 2. पूछना चाहिए सर कब बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो. अगर हाँ सर. सपोज करो, नहीं नहीं सुनो मेरी बात ढंग से सुनना. मैं यस सर. जनरली H2O2 को ना एक ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता हूँ, ठीक है. तो अगर H2O2 की बात करूँ तो अगर ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्ट करता है तो रिएक्शन होती है 2H प्लस प्लस O2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. तो पर मोल एन फैक्टर इज 2, करेक्ट? यस सर. So per mole, 2 moles of electron is utilized, so n factor is 2. And H2O2, when absorbed 2 electron, when it is acting as an oxidizing agent, it will undergo reduction. So I'll be getting 2OH minus. Getting it? Again, Yes, sir. the n factor comes out to be how much? 2. 2. Now, when H2O2 undergo uh, disproportionation reaction, where H2O2 is oxygen is getting oxidized to oxygen gas, plus it is getting reduced to H2O liquid. Getting it? Yes, sir. Then the n factor will be how much for this reaction? सर 2 ही होगा ना. Nahi. What you will do? एक सेकंड. Whenever सर disproportionate, और एक H2O2 you डाल will दो. write down the reactant twice यस सर. and you will calculate individual n factor, right? हाँ सर. तो मुझे individual n factor calculate करके दो. सर एक जो O2 में जाएगा उसके लिए 2 होगा. वेरी गुड. ये जो O2 में जाएगा उसके लिए 2 होगा. एंड जो वाटर में जाएगा उसके लिए भी 2 ही होगा. ओके. तो पर मोल 2 है, पर मोल 2 है, तो एन ऑफ हाँ सर. ऑक्सीजन एन ऑफ रिडक्शन 2 है. तो क्या फॉर्मूला है एन 2 फैक्टर? into 2 by 2 plus 2. कितना आया? 1. तो जब ये रिडॉक्स रिएक्शन करता है ना तो उसका एन फैक्टर क्या होता है? 2 1 होता है. हाँ, डिस्प्रपोर्शनेशन में 1 होता है. और अगर वो किसी भी और चीज के साथ रिएक्ट करता है तो उसका एन फैक्टर क्या होता है? 2. बात समझ में आई? यस सर. अंडरस्टूड. बट हाँ हम सर. एन फैक्टर यहाँ पे लेंगे, हम H2O2 को किसी भी दूसरे रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमें एन फैक्टर क्या लेना पड़ेगा? सर किसमें? अगर इस केस के अंदर ना हम H2O2 को किसी और सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके एन फैक्टर निकाल रहे हैं, बिकॉज जनरली वॉल्यूम स्ट्रेंथ के जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसको हम KMnO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, Fe2 प्लस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो इंडिविजुअली ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है. गेटिंग इट?
हाँ सर। तब उसके लिए एन फैक्टर क्या लेना पड़ता है अपने को? सर देखेंगे ना रिएक्शन अरे once ये। कोई भी रिएक्शन हो उसमें H2O2 या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ऐड करेगा या तो फिर वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह रिएक्ट करेगा। अच्छा तो दो ही लेंगे सर दो लेंगे, हमेशा। तो एन फैक्टर दो लेंगे, ठीक है। यस सर। तो एक बात बताओ, अगर मोलारिटी तुम्हारे पास 2 मोलर आया, राइट, नॉर्मालिटी हाँ कितना सर। आएगा? 1 मोल। बेटा दोबारा सोचो, नॉर्मालिटी इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलारिटी होता है ना। ओ हाँ सॉरी सर, 4 मोल, 4 n। फोर फोर नॉर्मल, तो इट इज 4 नॉर्मल 2 मोलर सॉल्यूशन, एनी डाउट? नो सर। एक बार बताओ, जब मोलारिटी इसका 2 मोलर दे रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि H2O2 के सर कितने मोल्स हैं? 2 मोल है 1 लीटर में। 2 मोल्स हैं, जहां पे वॉल्यूम है 1000 ml, कोई डाउट? नो सर। तो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना होगा? 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना आएगा H2O2? 0.2 मोल्स। वेरी गुड, 0.2 मोल्स। तो कितना वेट आएगा? 0.2 इंटू 20 क्या क्या इंटू क्या 19। क्या 19 क्या क्या 19। क्या? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर अरे मास? सॉरी सर, ये 34। 34। तो कितना आएगा? सर 6.8। 6.8% इस परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या होगा ये? परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट, गेटिंग इट? हाँ सर। कि 100 ml में कितना ग्राम H2O2 है, अंडरस्टूड? यस सर। तो आज के बाद वॉल्यूम स्ट्रेंथ और परसेंटेज स्ट्रेंथ में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए, अंडरस्टूड? हाँ सर। चलो ग्रेट। Now listen, these are the topics of redox reaction which has to be covered, which we have done, right? हाँ सर। कोई डाउट है redox के अंदर अभी? सर और भी एक ये रहता है ना, आयोडोमेट्रिक एंड ये कुछ तो, और आई के साथ दैट है। इज द आयोडीन रिलेटेड स्टफ जो हमने कल क्वेश्चंस किए थे ना, हाँ जिसके सर। अंदर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन सब डाले थे, ठीक है। वो अच्छा उसके वही है अंदर क्या सर? पार्ट इंक्लूडेड था, बट एनीवेज वील डू वन थिंग, आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री हम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ओके सर। आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री। Hey, what is iodometry and iodimetry? नहीं। देखो, आयोडो, आयोडो, आयोडो का मतलब होता है ओ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गेटिंग इट? यस। तुम क्या कर रहे हो आयोडो के अंदर? तुमने लिया एक्सेस ऑफ के आई सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? क्या है? लेट्स से एक्सेस के आई लिया। एक्सेस के आई के अंदर तुमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, गेटिंग इट? हाँ सर। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which is a stronger oxidizing agent will react with Ki to produce iodine gas, getting it? हाँ सर। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, Ki को किस में ऑक्सीडाइज करेगा? आयोडीन गैस में। आयोडीन गैस के अंदर। आयोडीन गैस, हाँ, जनरली ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है। अगर आयोडीन को बेसिक Ki को बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करवाया गया तो ये याद रखना, बेसिक मीडियम में आयोडीन IO3- में कन्वर्ट होता है। ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आ चुका है, गेटिंग इट? उन्होंने क्या यस किया सर। था, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की लिस्ट दे दी थी, ठीक है। बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ H+ था। फॉर एग्जांपल PbO2 इन द प्रेजेंस ऑफ H+, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H+, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H+। एक में था KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ OH-। तो जितने भी H+ के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे वो Ki को किस में कन्वर्ट करेंगे? एसिडिक मीडियम में I2। हाँ, तो I2 में रहता था, ठीक है। और अगर बेसिक होता तो IO3-।
और इसका लॉजिक पता है क्या है? समझो, लॉजिक ये है कि बेसिक मीडियम में क्या होता है, जो आयोडीन है वो बेसिक मीडियम के अंदर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करके आई माइनस और आईओ3 माइनस बनाता है। गेटिंग इट? यस तो सर। अल्टीमेटली जब भी के आई तुम्हारा आई2 में कन्वर्ट हुआ तो बेसिक मीडियम के अंदर उसने क्या किया, वापस से के आई बनाया और आईओ3 माइनस बनाया। के आई तो रिएक्टेंट ही था, हाँ सर। तो फाइनली बचा क्या? IO3 माइनस। अंडरस्टूड? ओके यस सर। बात समझ में आई कि हुआ कैसे है? हाँ यस सर, समझा। ग्रेट। नाउ लिसन, अब जो भी आयोडीन इवॉल्व कर रहा है इस सॉल्यूशन में से, उस आयोडीन को ना तुमने हाइपो के साथ रिएक्ट किया। अगेन हाइपो क्या करता है, आयोडीन को आई माइनस में कन्वर्ट करता है और ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है S4O6 2 माइनस के अंदर। गेटिंग इट? यस सर। हाइपो का जो एन फैक्टर रहता है वो कितना रहता है? 2 1 बेटा। 1 1 हाइपो का एन फैक्टर क्या होता है? 1, जब वो 1। S4O6 में कन्वर्ट होता है। गेटिंग इट? हाँ सर। नाउ अंडरस्टैंड आयोडीमेट्री, आयोडोमेट्री। तो आयोडोमेट्री के अंदर तुमने क्या किया, सपोज करो तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन था के आई का एक्सेस। तुमने क्या किया इस सॉल्यूशन के अंदर ना, लेट्स से K2Cr2O7 डाल दिया एसिडिक मीडियम के अंदर, तो होगा क्या, K2Cr2O7 किस में कन्वर्ट करेगा? Cr+3। Cr+3, और आयोडीन गैस लिबरेट होगा। कोई डाउट? नो सर। तो के आई ऑक्सीडाइज हो जाएगा I2 में। I2 को जब तुमने रिएक्ट किया ना, तो I2 को लगा नियरली 600 ml ऑफ 0.1 मोलर हाइपो सॉल्यूशन, ताकि वो वापस से आई माइनस में कन्वर्ट हो जाए। कोई डाउट? नो सर। अच्छा एक बात बताओ, उसने पूछा कि भाई साहब मैंने ना लेट्स से 100 ml ऑफ K2Cr2O7 यूज किया था एक्स मोलर, तो व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ K2Cr2O7? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर, समझा। अब एक बात बताओ, ये दो रिडॉक्स रिएक्शन है और आयोडीन कनेक्टिंग स्पीशीज है, करेक्ट? यस सर। कनेक्टिंग स्पीशीज का एन फैक्टर इस वाली रिएक्शन में कितना है? सर उसमें, एक मिनट, I- से तो 1 ही होगा ना सर? तो एक बहुत बेसिक चीज मिस कर रहा है, जो बहुत लोग करते हैं, जो तुम कल पिछली बार नहीं कर रहे थे। मैंने क्या कहा था, जब भी एन फैक्टर निकालना है तो एटम क्या होने चाहिए, जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कर रहे हो, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, उनके जो नंबर ऑफ एटम्स है दोनों साइड क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए कि वो सेम होने चाहिए। हाँ सेम होना चाहिए सर। तो कितना आएगा I2 का एन फैक्टर? अच्छा, I2 कहाँ? I2 का 2 होगा सर। I का 1 होगा, बस I- का। आई टू का पूछो। I2 का 2 होगा सर, 2 होगा। क्योंकि, हाँ सर। इधर I2 का कितना होगा? सर इधर I2 का भी 2 होगा। 2 होगा। जब एन फैक्टर कनेक्टिंग स्पीशीज का सेम रहता है तो ग्राम इक्वलेंस दोनों रिएक्शन में बैलेंस रहेंगे। यस सर। तो मिली इक्वलेंस ऑफ hypo will be equal to milli equivalence of K2Cr2O7. यस सर। What is the end factor of K2Cr2O7? 6। 6. So shall I say that 6 into 100 into x will be equal to hypo का end factor कितना है? सर 1। 1 into 0.1 into 600. Any doubt? नो सर। तो x की वैल्यू कितनी आई? सर 0.1 आ गया। अंडरस्टूड? यस सर। सिंपल। हाँ सर। आगे चले। यस सर। एक क्वेश्चन और आयोडोमेट्री का, ठीक है? It'll come slightly in the
ट्रिक क्वेश्चन राइट, ठीक है। मैंने क्या किया, इस रिएक्शन के अंदर एक्सेस ऑफ के आई लिया, ठीक है, हाँ सर। के आई एक्सेस। इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, लेट्स से KiO3 इन एसिडिक मीडियम, आयोडीन बना। आयोडीन को रिएक्ट करवाया हाइपो के साथ टू फॉर्म I माइनस एंड S4O6 2 माइनस। मेरे पास अराउंड जो वॉल्यूम यूज हुआ दैट इज 500 ml, 0.2 मोलर। मुझे ना मैंने 100 ml ऑफ KiO3 यूज किया था एंड मुझे ना इसका मोलारिटी चाहिए, ठीक है। हाँ सर। तो चलो कैलकुलेट करके बताओ। या सर एक मिनट। हाँ, सर मुझे 1/6 मोलर आ रहा है। चलो ठीक है। मुझे मुझे तो पहले ही बताओ, आयोडीन का एन फैक्टर इस रिएक्शन में कितना है? 2। 2। इस रिएक्शन में कितना है? 5/3। 5/3। गेटिंग इट? यस सर। तो क्या एन फैक्टर सेम है? नो सर। अगर नो एन सर। फैक्टर सेम नहीं है देन यू हैव टू गो बाय नंबर ऑफ मोल्स अप्रोच, ठीक है। हाँ सर। रिएक्शन में हम ग्राम इक्विवेलेंस कंजर्व करेंगे, एग्रीड। यस सर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन इनटू 2 n factor, make it like number of millimoles of iodine into n factor is equal to milli equivalence of hypo, हाँ n सर। factor 1 into molarity 0.2 into volume in ml 500. Any doubt? नो सर। Very good. तो n factor number of millimoles कितने हैं? 50। 50. So if I got number of millimoles as 50 here, so tell me what is the n factor of iodine here? 5/3. 5/3। What is the n factor of KiO3 here? 5। 5. Now understand one thing. Shall I say that milli equivalence of KiO3 will become equal to milli equivalence of iodine? I2। हाँ So सर। I'll be getting it as 5 into molarity into 100 is equal to 2 into number of millimoles, that is equal to what? सर 5/3 ना। 1 second, yeah, 5/3. Correct? हाँ सर। तो कितना आएगा? M is equal to 1/6. Understood? यस सर। Done? हाँ सर।
Okay, over. आगे चले. Yes, sir. This is iodo. What is that? Iodo. IOD क्या होता है? आईओडी के अंदर ना तुम सॉल्यूशन को रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करते हो. व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट? विच टेंड्स टू गिव इलेक्ट्रॉन, राइट? हाँ सर. फॉर एग्जांपल हाइपो ही ले लो. It gives electron to form S4O6 2 minus plus 2 electron, getting it? Yes, sir. And you can use Fe2 plus. It can give Fe3 plus, right? हाँ सर. Oxalate use कर सकते हो, which can give you 2CO2 plus 2 electron. So you have a list of reducing agent. We have already done that. ठीक है? Yes, sir. Now understand here. If you understood this part, iodimetry part, uh, in this iodimetry solution questions, what we do first, we standardize iodine solution. So I have a solution of iodine whose concentration is already known to us, getting it? हाँ सर. So I have a standard solution of iodine. The problem is iodine solubility in water is not very high. So iodine cannot dissolve completely inside water. It will be like very feeble dissolution of iodine. Getting it? Yes. So in order to make a solution of iodine in water, what I do, I add Ki. So what happens here, Ki when reacts with iodine, it becomes a brown color solution Ki3. Getting it? Yes, Then sir. it gets soluble in water where I'll get K plus and I3 minus. And you know that for I3 minus, the hybridization is sp3d and the structure is Yes, sir. right. हाँ सर. And as it is becoming ions, it will be soluble in water. Any doubt in that? No, sir. Now just tell me one thing. Suppose if I have excess of Ki and let's say I have added 1 mole of Ki, 1 mole of I2 in it. So 1 mole of I2 will react with Ki to produce Ki3, right? हाँ सर. So I'll be getting 1 mole of Ki3. Any doubt in that? No, sir. And you know what? It is the Ki3 solution which is formed over here and whose concentration is known to us. Understand one thing, this Ki3 solution is reacting with reducing agent. Getting it? Yes, sir. See, when iodine reacts with reducing agent, what will happen? Iodine will gain electron, right? Yes, sir. The reaction should be like this. But you some student says that it is not iodine, it is Ki3. What is that? Ki3. Ki3 also absorbs 2 electron. It becomes Ki plus I minus. Any doubt? No, sir. Tell me one thing. I can write Ki3 as Ki plus I2, right? हाँ सर. 2 gives Ki plus 2I minus. Any doubt? No, sir. Ki got cancelled. That means Ki3 is nothing but iodine only. हाँ सर. Understood? Yes, sir. Yeah. It's just to dissolve iodine, I am using excess of Ki. Now understand that I already know the concentration of Ki3. Let's say it is given to me as 100 ml of 5 molar solution of Ki3. Understood? हाँ सर. I am reacting it with ferrous oxalate. Ferrous oxalate gets oxidized to ferric ion plus carbon dioxide and Ki3 will become equal to Ki plus I minus. Any doubt? No, sir. Very good. Now ferrous oxalate amount they have used is let's say 100 by 3 ml x molar, and they are asking me to calculate the
molarity of this solution. Getting it? सर वो FeC2O4 है ना? FeC2O4 है, yeah, ferrous oxalate. Tell me the molarity of ferrous oxalate here. एक मिनट सर. हाँ. सर 10 आ रहा है. 10 आ रहा है. इसका इन फैक्टर कितना है? सर इसका तो 2 ही होगा. 2 इंटू 5 इंटू 100 इज इक्वल टू व्हाट इज द इन फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्सैलेट? 3. 3 इंटू 100/3 इंटू x, करेक्ट? यस सर. तो कितना आएगा ये? 10. अंडरस्टूड? हाँ सर. You understood iodometry और iodimetry definition? हाँ सर समझा. और कोई डाउट इसके अंदर? सर तो मतलब बस KI3 मतलब I2 को बस KI3 लिखना है तो आयोडोमेट्री से कुछ अलग नहीं है इसमें. नहीं. ओके सर. And one more information you got that the color of solution is brown now. हाँ हाँ हाँ. हाँ हाँ. सर. Iodine is violet in color. ठीक है? And the indicator which is used is starch. Ki3 with starch is blue black. When the reaction ओके gets सर. over, the starch become white. Understood? Because यस all the सर. iodine is getting converted. Similarly, in the above reaction, where I'm producing iodine, this iodine will get entrapped in starch. Getting it? That सर कहाँ starch पे? will again become blue black because of iodine, and you know that. Okay, that when the तो iodine indicator become का I पॉइंट फिक्स minus, करके. it becomes what? White color again. So starch is used as an indicator, right? That is the main thing over there. In iodometry and iodimetry titration, we are using starch as an indicator. सर एंड में वाइट बनेगा ना हाँ, एंड एंड में पॉइंट white पे? बन जाएगा, ब्लू ब्लैक से व्हाइट बन जाएगा. स्टार्च के अंदर जब आयोडीन जाता है ना तो उसके स्पेसेस के अंदर घुस जाता है, तो उसे इंक्लूजन कंपाउंड्स कहते हैं. क्या बोलते हैं? इंक्लूजन कंपाउंड्स. हाँ. सर तो वो क्लैथरेट जैसा है क्या? हाँ, क्लैथरेट्स जैसे. अच्छा ओके सर. अच्छा, क्लैथरेटेड वाटर सुना है? सर मतलब सॉलिड आइस में क्लैथरेट्स रहता है हाँ, ना उसके अंदर पानी. क्या घुसता है? सर नोबल गैस है सर वो नोबल सब गैसेस के आर्गो. अंदर कौन सी गैसेस नहीं घुसती हैं? सर हीलियम एंड नियॉन. हाँ, क्यों? बिकॉज साइज बहुत छोटा है. एग्जैक्टली, तो एस्केप आउट हो जाता है वो. तो आइस के अंदर कोई भी नोबल गैस इंट्रैप्ट हो जाती है केज लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसे क्लैथरेटेड वाटर बोलते हैं, राइट? यस सर. या. नाउ आई गेस यू अंडरस्टूड दैट पार्ट. हाँ सर समझा. So that was the end of redox.